So students, today I am starting with organic chemistry, and the first chapter of organic chemistry is haloalkanes and haloarenes. So in this episode 1 means part 1 of this chapter, students, we will just talk about that what are haloalkanes and what are haloarenes. So student, first of all, that you have studied in class 10th that hydrocarbons are those compounds which are made up of carbon and hydrogen. So here I am taking one simple hydrocarbon, that is your methane. You all know that the formula of methane is CH4. So this is the structure of methane, okay. And what I am going to do is I will replace this hydrogen atom of methane with chlorine, okay. Means I am removing this hydrogen, and in place of this hydrogen I am going to put this chlorine atom. Now you think that the compound formed will be what will be the name of the compound which will be formed? So same, like we have to put 3 hydrogen atoms and we are replacing this hydrogen by chlorine atom, so you have to put chlorine atom on this side. So this is a new compound formed, which is formed by replacement of one of the hydrogen atom of alkane by chlorine atom. Okay, so this is, student, this one is alkane, and on this side we are having haloalkane. So this is alkane and this one is haloalkane, because now we have replaced one of the hydrogen atom with halogen atom, so it is called haloalkane. So now student, from here we can write definition of haloalkane as these are those compounds which are formed by replacement of one or more hydrogen atom of alkane by halogen atoms. Okay, so you should also write definition along with me. Those organic compounds which are formed by replacement of those organic compounds which are formed by replacement of one or more hydrogen atom of alkane are called haloalkanes. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हम लोग हाइड्रोजन को कम करके और हेलोजन को लगा देते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं हेलोएल्केन्स. ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको बताया है, एक मीथेन था अपने पास में, उसका H को मैंने रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया, तो हेलोएल्केन फॉर्म हुआ. इसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हेलोजन में केवल क्लोरीन ही लगा सकते हैं. इन प्लेस ऑफ क्लोरीन वी कैन पुट ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग एल्स. ओके, सो स्टूडेंट, now I am taking another example. In this, suppose I am having this compound. This is your, you tell me name of this. Okay, how many carbon atoms are there? It is having 2 carbon atoms and 6 hydrogen atom. Okay, so the formula of this is C2H6 and its name is ethane. Okay, this is ethane. Student, one more thing
I want to tell you that before studying organic chemistry of class 12th, you should, I'm giving you advice to read at least once a book, NCERT book of standard 11, okay? Then only you will able to understand organic of class 12th. So this is ethane, and what I am going to do is I am replacing this hydrogen atom now by bromine, okay? I am replacing this hydrogen atom. In place of H I am going to put Br, bromine. Then the compound formed will be, जो नया compound बनेगा कैसा होगा, that will be of this type, H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर C, ये H, यहाँ पर भी H, and here you have to put Br, means bromine. Okay, now what will be the name of this compound? Student, this is ethane and this is bromoethane. Okay, the name of this is bromoethane, BROMO, bromoethane. Okay, or you can also call it ethyl bromide. You can also call it ethyl bromide. Okay, ethyl bromide भी हम लोग बोल सकते हैं. ये मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोमोइथेन कब बोलना है और इथाइल ब्रोमाइड कब बोलना है, जब हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तब. तो फिलहाल अभी ये समझिए कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है. सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दो आप, बाई हेलोजन. ठीक है ना, बाई, तभी तो बनेगा हेलो एल्केन. ठीक है ना, ये मिस हो गया था वहाँ पे. दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाई हेलोजन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स. ओके स्टूडेंट, नाउ वन मोर थिंग अबाउट हेलो एल्केन इज दैट you can see that this carbon atom is bonded to how many atoms? This carbon atom is bonded to this hydrogen, this Br, this H and with neighboring carbon atom. मतलब ये जो कार्बन है जिसे हेलोजन लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 4 लोगों के साथ में, है ना. तो जब कभी भी कार्बन एटम की बॉन्डिंग 4 एटम के साथ में होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी, वो आएगी sp3. क्या आएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो हेलो एल्केन्स में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. तो इन हेलो एल्केन्स carbon atom is sp3 hybridized. It is sp3 hybridized. Understood? This is an important point. Okay, then student, now we are going to टॉक अबाउट हेलो एरिन्स ऑल्सो. हेलो एरिन्स के बारे में भी इसी टॉपिक में बात कर लेंगे आज. तो अभी हेलो एल्किन क्या होता है बता दिया. हेलो एरिन्स में आ जाओ. इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स. जिस तरीके से यहाँ पर हेलो एल्केन्स में से हाइड्रोजन गया था, उसी तरीके से हेलो एरिन्स में से बेंजीन में से हाइड्रोजन को हमें हटाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो लेट अस डू up to next page. Now student, you all know that okay, we are going to talk about hello arenes. Okay, now first of all I am writing the definition of this. What are hello arenes? So these are organic compounds
which are formed by replacement of one or more hydrogen atom, it's one or more hydrogen atom of benzene, okay, by हेलोजन्स, ओके। तो जब कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कोई हेलोजन कर दे और वो भी बेंजीन में से, तो हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। हेलो एरिन्स को स्टूडेंट्स are also known as aryl halide, ठीक है ना। they are also known as aryl halides, इनको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो हम लोग बेंजीन को समझ लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये वैसे क्लास 10th में था, अब तो बहुत ही कम सिलेबस कर दिया गया है। तो स्टूडेंट बेंजीन में सबसे पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको समझना ज़रूरी है। इसमें इट हैज़ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ओके। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेंजीन का, तो आप ज़रा कुछ समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि उसके बाद में इसका रेजोनेंस भी हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चलिए इस स्ट्रक्चर, ये तो हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये इसको समझेंगे। तो अभी अपने पास में बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी समझ सकते हैं आसानी से। अब इसमें सबसे पहले तो ये रहा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। और हमें मालूम है कि कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 6, 1 2, देन दिस इज योर थर्ड हाइड्रोजन, दिस वन इज फोर्थ हाइड्रोजन, दिस इज फिफ्थ हाइड्रोजन, दिस इज योर सिक्स्थ हाइड्रोजन एटम, ओके। लेकिन यहीं पर एक बात और हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, एंड कार्बन इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए स्टूडेंट, आप देख लीजिए। इस कार्बन ने अभी केवल, इस वाले कार्बन ने केवल 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो एक बॉन्ड और बनाएगा ना, तो ये रहा यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, 4 हो गए यहाँ पर। तो इसके पास आ जाओ। अब इसने कितने बनाए हुए हैं, 3, तो एक और बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो आपने देखा कि किस तरीके से बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अल्टरनेट, ठीक है ना। और जब ये बॉन्ड्स अंदर रोटेट करते हैं
मतलब जब ये बॉन्ड अंदर रोटेट करते हैं तो ये एक रिंग का शेप ले लेते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है और इसी को हम लोग रेजोनेंस भी कहते हैं। और तब जाकर इस तरह का बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब स्टूडेंट्स इसमें हेलो एरिन्स में क्या होने वाला है कि हम ये जो हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस करेंगे। इनको रिप्लेस करके हम हेलोजन एटम्स को लगाएंगे यहाँ पर, तो हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हेलो एरिन्स क्या होते हैं? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, हेलो एरिन्स आर फॉर्म्ड। ओके, ऊपर देखो डेफिनेशन भी लिखी थी मैंने यहाँ पर। हेलो एरिन्स the organic compounds which are formed by replacement of one or more hydrogen atom of benzene by halogens। ओके, अब इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग दिस बेंजीन, ठीक है। और अगर ऐसे अभी नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग है, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए ऐसे ही बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, सब जगह कार्बन है। और उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है, बेंजीन में। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब हमें करना क्या है? हमें H को रिप्लेस करना है और हाइड्रोजन एटम को लगाना है। तो सपोज़ करिए चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ से, ठीक है। तो H को मैंने यहाँ से हटाया, माइनस किया H और मैंने लगाया है प्लस Cl, मतलब Cl को मैंने लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी के H तो वैसे वैसे बने रहेंगे और ये यहाँ पर बॉन्ड्स भी हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर H की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl, क्या आ जाएगा? Cl, ठीक है ना। तो ये पहले क्या था? पहले ये था बेंजीन, अभी बन चुका है क्लोरोबेंजीन। दिस इज नाउ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेंजीन था और ये बन चुका है क्लोरोबेंजीन।